I would like to start this video with a very small story. When I was in school, we had one of our favorite teachers who always used to tell us that whenever you have any problem in life, you can come to me. बेझिझक आओ, but जब भी आओ, problems का solutions भी खुद ही लेकर आओ. Now, when I see aspirants in the RBI Grade B domain, they are really confused, demotivated, they are living in uncertainty कि next year क्या होगा, कितनी seats आएंगी, कैसे selection होगा. But my question is simple: should you just be living with the problem or should you try to find the solution? Solution है क्या? बिल्कुल है. I would be telling you few exams जो आप RBI के साथ दे सकते हैं. जो आरबीआई की 80 to 100 सीट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, क्या वो 80 to 100 का नंबर 180 to 200 हो सकता है अगर हम सारे एग्जाम्स को मिलकर दें. तो इस वीडियो में हम सारे एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे एंड नो डाउट आरबीआई माइट बी अ प्राइमरी टारगेट. इट्स वन ऑफ द रिनोन्ड बॉडीज. उसका मेजर रीजन यही है दैट आरबीआई हैज अ वेरी गुड सोशल इंप्रेशन बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट द एवरी पर्सन इन इंडिया. लेकिन बाकी रेगुलेटरी बॉडीज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो आर इक्वली गुड. आप उनके बारे में सुनिए, समझिए. मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं. जो सबसे पहली रेगुलेटरी बॉडी मैं आपको बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए. क्या इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है? पिछले कम से कम 8 से 10 साल से इसका नोटिफिकेशन हर साल आ रहा है. इनफैक्ट इट केम ड्यूरिंग द कोविड ईयर ऑल्सो. What are the number of seats that come in NABARD every year? Around 50 to 80. ये ऊपर नीचे हो सकती हैं. Now, what is the percentage of syllabus overlap of NABARD with RBI? That is around 80%. बहुत high percentage overlap है. So, if you prepare for RBI, you can be easily ready for NABARD grade A. अब ये किस लेवल पे रिक्रूट करती है? ग्रेड ए. आरबीआई ग्रेड बी लेवल पे रिक्रूट करती है, बट ऑलमोस्ट ऑल अदर रेगुलेटरी बॉडीज विल रिक्रूट एट लेवल ग्रेड ए. क्या ग्रेड ए लेवल बहुत छोटा है? ऐसा नहीं है, ग्रेड बी से एक नीचे है. बट अगेन समटाइम्स हमें ऑप्शंस चूज करने की बजाय एक जॉब लेनी है, तो ग्रेड ए भी बहुत अच्छी जॉब है. इनफैक्ट grade A or grade B ho, at the end of the day you're working in one of the regulatory bodies and your next promotion is grade B itself. इसमें सैलरी भी अच्छी है. CTC is around 25 to 30 lakhs. Postings in NABARD grade A is all over India. Promotions NABARD grade A में टाइम बाउंड रहती हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड ज्यादा नहीं रहती हैं. But promotions in NABARD grade A would be faster than RBI. The reason being that it's a very smaller organization as compared to RBI. नोटिफिकेशन इसका कब आता है? नाबार्ड का नोटिफिकेशन जर्नली जुलाई से सितंबर के बीच में आता है. एक आधा महीना ऊपर नीचे हो सकता है. नंबर ऑफ सीट्स में पहले ही बता चुका हूं. इफ आई टॉक अबाउट द स्किल्स, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई, द स्किल्स फॉर नाबार्ड ग्रेड ए और ऑलमोस्ट द सेम एक्सेप्ट फॉर वन सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप आरबीआई एस्पिरेंट होते हुए क्वांट और रीजनिंग से जूझ रहे हैं, then quant and reasoning will not be a problem in NABARD. It will be just a cakewalk. अब क्या आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं? इसके लिए यू नीड अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डोमेन. ठीक है, इन एनी सब्जेक्ट लाइक आरबीआई with a minimum of 60% marks. There is a relaxation for SC, ST and PWBD who require 55% marks. And if you have bachelor's degree but you don't have 60% marks, then they give you another option that maybe if you have done post graduation degree with 55% marks, then also you will be eligible. And SC, ST, PWBD in case of post graduation will require 50% instead of 55%. And apart from these, CAs, CS, ICWA and PhD, right, would also be eligible. तो ये और है, post graduation is not mandatory. Either you have to be a bachelor with 60% or a postgraduate with 55%. So you can easily find out whether you are eligible or not. This is the educational qualification. In terms of age, it would be 30 years the maximum. मतलब you would not have crossed 30 years by the cutoff date, and cutoff date is generally the 1 month before the notification or the first of the month in which the notification comes. तो 30 years से आप बड़े नहीं होने चाहिए. So this is about NABARD grade A. And if I talk about the syllabus overlap, which I was earlier telling you that it is almost like 80%. In phase 1 of RBI, we have 4 subjects: quant, reasoning, English, GA. The same will get repeated in NABARD.
Apart from these four subjects, in NABARD Grade A Phase 1, you will also have ESI, which is similar to RBI ESI in Phase 2. You will have ARD, which is a separate subject. ARD comes both in Phase 1 and Phase 2 of NABARD. And then we have decision making and computer knowledge. These are very small subjects which can be done within just 5 days, I would say. ठीक है, तो NABARD में मोटा मोटा आपको ARD पढ़ना है, बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों में है, ESI दोनों में है, इंटरव्यू तो एनीवेज इज अ सेपरेट थिंग. So ARD would be the main area that you would have to cover apart from certain current affairs related to agriculture. But बहुत ज़्यादा दोनों complementary हैं. If you prepare for RBI, you are getting automatically prepared for NABARD also. और कुछ लोगों को मिथ रहता है कि NABARD is a rural job. Not at all. You are posted in metro cities like Chandigarh, Lucknow, Chennai, Hyderabad, Bangalore, all that. Wherever RBI has its offices, NABARD is also having its offices. Will you be working with farmers? Not directly, but you would be making policies for them, but it doesn't mean that you would be visiting farms or villages on daily basis. Do you need agri background? Answer is no. Eligibility wise, you don't require. Also, skill wise, you don't require an agri background because there would hardly be some static part which you can cover, and many of the questions would be from current affairs related to agriculture which anybody can cover easily. The next exam that I am going to tell you is IRDI Grade A. अब IRDI Grade A क्या है? ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है IRDI. जैसे RBI बैंक्स को रेगुलेट करता है, IRDI इंश्योरेंस सेक्टर को, और NABARD बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स को. ठीक है, तो ये सारे रेगुलेटर्स हैं, इसीलिए हम ये एग्जाम्स को डिस्कस कर रहे हैं. क्या ये एग्जाम हर साल होता है? पहले नहीं होता था, बट नाउ दिस एग्जाम केम इन 2023-24 एंड IRDA हैड पास्ड आउट अ फॉर्मल रूलिंग कि ये एग्जाम 25 में भी होगा, 26 में भी होगा और 27 में भी होगा. सो आई थिंक दिस इज नाउ गोइंग टू बिकम अ कंसिस्टेंट एग्जाम. इसमें भी IRDI ने बोला है कि 40 से 50 सीट हर साल आएंगी अगले 3-4 साल के लिए, या उसके बाद उससे भी ज्यादा. एंड सिलेबस ओवरलैप विद RBI हियर इज ऑल्सो अराउंड अबाउट 70%. इसका लेवल क्या है जहां पे रिक्रूट करते हैं? ग्रेड ए, विच इज 1 लेवल बिलो द ग्रेड बी एट RBI. बट एज आई टोल्ड यू, अल्टीमेटली आपका प्रमोशन होके ग्रेड बी बनना है, एंड प्रमोशंस आर फास्टर इन IRDI एज कंपेयर टू RBI बिकॉज ये बहुत ही लीन ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें अभी ग्रेड ए लेवल पे कितने 50 से 60 लोग होंगे और इनको करने हैं अराउंड 250. ठीक है, तो बहुत फास्टर प्रमोशंस होती हैं यहाँ पे बिकॉज इट्स अ वेरी लीन ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ. पोस्टिंग्स यहाँ पे मेनली हैदराबाद में होंगी क्योंकि 90% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ IRDI लाइज इन हैदराबाद. उसके अलावा मुंबई और दिल्ली में भी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बट मेनली हैदराबाद. सैलरी वही 25 से 30 लाख है. स्किल्स की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स जो आप RBI में पढ़ते हैं सेम यहाँ पे यूज हो जाएंगे. इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ईजी आएंगे. But one subject that you need to read is insurance because this is a regulatory body in the insurance sector, and the second is economic and social issues impacting the insurance sector. So this ESI that you are seeing here is different from what you study in RBI. This is ESI impacting insurance. ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे मैंने बोला अभी ईयरली आएगी, पिछले 2 साल आई है, अगले 3-4 साल भी आएगी, सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में आती है. नंबर ऑफ सीट्स अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 रहने वाली है. इसमें एलिजिबिलिटी मैंने नहीं डाली है, बट इसमें एलिजिबिलिटी वही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, राइट, इन एनी स्ट्रीम इफ आई रिमेंबर. बट मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट डायरेक्टली. आई फॉरगॉट टू पुट इट हियर, बट इफ यू आर ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम यू वुड बी एलिजिबल फॉर IRDI ग्रेड ए. ठीक है, और अगर मैं सिलेबस ओवरलैप की बात करूं तो फेज 1 में यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जी आता है विच इज सिमिलर टू RBI. थोड़ा GA सेक्शन में अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी. फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सिमिलर टू RBI. ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट सिमिलर टू RBI. यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कैसे हमारा इकोनॉमिक और सोशल जो
environment hai that is impacting the insurance sector. So this is a bit different. All the chapters would be different here. And the third is insurance and management. Management is something which is similar to RBI. Insurance you would have to study separately, and this would be the mainstay of your study because this would also be asked in your interview. But overall आप देखेंगे काफी ज्यादा ओवरलैप है 70% तक. सो अगेन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर एडाई. और एडाई को लेकर भी लोगों को कुछ मिथ्स हैं कि इसमें लेस सीट्स आती हैं. जैसा मैंने बोला अभी मैंडेट पास हुआ है तो हर साल 40 से 50 सीट्स आने वाली हैं अगले 3 साल में. सो दिस इज अ गुड न्यूज एंड इट इज नॉट ईजी टू क्रैक. इट इज नॉट ईजी टू क्रैक. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर. सो डोंट टेक इट ईजी, प्रिपेयर वेल फॉर दिस इफ यू वांट टू टारगेट दिस एग्जाम. और मोर ओवर ये एग्जाम पूरा डिस्क्रिप्टिव है. ठीक है, ये एग्जाम पूरा डिस्क्रिप्टिव है. आई एम नॉट डिस्कसिंग द पैटर्न ऑफ दीज एग्जाम्स इन डिटेल हियर, बट इसका जो फेज 2 है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है. इसमें एमसीक्यूज नहीं आते हैं. यू कैन find other videos on YouTube where detailed pattern of ADI exam has been discussed. Next exam that I want to tell you that you should be preparing along with RBI is SEBI. अब इसका कोई पैटर्न ऑफिशियल नहीं है, बट आप देखें तो 18 में आई थी नोटिफिकेशन, फिर 20 में, फिर 22 में, फिर 24 में. तो हर 2 साल में एक बार आ रहा है सेबी जनरल करके, जर्नलिस्ट वैकेंसीज. नंबर ऑफ सीट 60 to 80 आती हैं. इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ओवरलैप विद आरबीआई इट इज अराउंड 60%. इसमें लेवल ग्रेड ए ही रहता है आपका, सो 1 लेवल बिलो आरबीआई, बट अगेन प्रमोशंस वुड बी फास्टर हेयर एज कंपेयर टू आरबीआई. आरबीआई में लेवल बी टू लेवल सी जाने में 7 साल लगते हैं. यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रमोशन 3 या 4 साल में हो जाता है. सो प्रमोशंस आर फास्टर. पोस्टिंग्स वुड मेनली बी इन मुंबई बिकॉज 90% वर्कफोर्स सेबी का मुंबई में है. Salary would be around again 25 to 28, 30 lakhs. And the skills in terms of subjects that you need to study to clear SEBI apart from what you study in RBI would be commerce and accounts, company law and costing. I'll compare the syllabus later in one of the slides. इसका नोटिफिकेशन जैसे मैंने बोला पैटर्न सीम्स टू बी बाई एनुअल, दो दैट इज नॉट ऑफिशियल बट जस्ट ट्रेंड से पता लग रहा है, और जनरली फर्स्ट हाफ या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में आता है. सीट्स अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 आती हैं. दैट कैन बी लेस और मोर. क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेबी अलाउज ओनली मास्टर्स डिग्री इन एनी डोमेन और बैचलर डिग्री इन लॉ, इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट. तो मास्टर्स डिग्री किसी भी डोमेन में चलेगी if you are masters in any domain, but bachelors would only be allowed in law and engineering. तो अगर आपने बैचलरेट में बीकॉम भी किया है ना, you will not be eligible because bachelor's degree only in law and engineering is allowed, whereas master's degree in any domain is allowed. ठीक है. और इसकी बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ऑल्सो वुड बी एलिजिबल फॉर सेबी. ठीक है जी. और इसका अगर मैं सिलेबस कंपेयर करूं, फेज 1 में 2 पेपर होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए. दिस इज सिमिलर टू आरबीआई. एक पेपर 2 होता है फेज 1 में जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट आएगा. दिस इज सिमिलर टू आरबीआई. इकोनॉमिक्स आएगा. दिस इज बिट सिमिलर टू आरबीआई बट इसमें 50% अलग रहेगा. कंपनी लॉ, costing and commerce and accounts, these would be the 3 subjects that you would have to study afresh for SEBI grade A. फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है विच इज सिमिलर टू आरबीआई. देन इसमें फेज 2 में पेपर 2 होता है विच इज सिमिलर टू पेपर 2 हेयर. जैसा पेपर 2 यहाँ पे है, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, टॉपिक्स यहाँ पे हैं, दी सेम सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स आर अगेन टेस्टेड इन पेपर 2 इन फेज 2. इसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है सिमिलर टू आरबीआई, ऑलमोस्ट सिमिलर टू आरबीआई, कुछ टॉपिक्स शायद डिफरेंट होंगे. इकोनॉमिक्स अगेन 50% सिमिलर टू आरबीआई. Company law, costing, commerce and accounts, these would be new subjects that you would have to study for SEBI grade A. और SEBI grade A को लेकर जो लोगों को जनरली लगता है, क्योंकि इसमें commerce and accounts है, costing है, which are subjects of the commerce background, people generally think that only people from commerce background or CAs would be able to crack it. No doubt that people from commerce background or chartered accountants would have an edge, but we have seen engineers are the smartest in this country, I would say.
नहीं भी है तो लेकिन एक फैक्ट पक्का है कि सेबी में बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल एग्जाम को क्रैक करते हैं. दे नीड पीपल फ्रॉम वेरिड प्रोफाइल्स. तो अगर आप इंजीनियर हैं, यू आर एलिजिबल एंड यू हैव गुड चांस टू क्लियर दिस एग्जाम एज पर दी नो फैक्ट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हर साल बहुत सारे इंजीनियर्स भी इस एग्जाम को क्लियर करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है पीएफआरडीए ग्रेड ए और एनपीएस ग्रेड बी. ठीक है, एनपीएस ग्रेड बी की बात करेंगे. तो पीएफआरडीए हमारी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है. मतलब जो भी हमारे पेंशन फंड्स हैं इंडिया में उनको पीएफआरडीए रेगुलेट करती है. ठीक है. और एनपीएस इज बेसिकली, आप जानते हैं एनपीएस एक स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम. इस नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करती हैं जिनको एनपीएस रेगुलेट करती है. इनकी नोटिफिकेशन वैसे कोई ट्रेंड नहीं है, बट यू कैन से कि वंस इन 2 और 3 ईयर्स आएगी. सीट्स बहुत कम आती हैं इनमें, 10 से 15 ही आती हैं. सिलेबस ओवरलैप इफ आई टॉक विद आरबीआई इट इज जस्ट 60%. But if I compare the syllabus of PFRD and NPS grade A with SEBI grade A, the syllabus overlap is 100%. So I would suggest you to give these exams, PFRD and NPS, only if you would have prepared for SEBI. अगर आप सेबी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए भी तैयारी मत कीजिए, बिकॉज इट वुड बी टू मच ऑफ योर एफर्ट फॉर जस्ट 10 सीट्स. रेदर फोकस ऑन आरबीआई, नबार्ड एंड एडाई. ठीक है. तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं, पीएफआरडीए ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूट करती है, एनपीएस ग्रेड बी पे. स्किल्स की टर्म्स में आरबीआई से कंपेयर करूं तो कमर्स एंड अकाउंट्स, कंपनी लॉ एंड पेंशन सेक्टर. हाँ, इसमें एक पेंशन सेक्टर एडिशनल कंपोनेंट है पीएफआरडी और एनपीएस में जो आपको पूछा जाता है. बट इफ आई कंपेयर इट विद सेबी, this all subjects would be done as part of your SEBI, so you would not require any extra skill. क्वांट रीजनिंग और करंट अफेयर्स इन दोनों एग्जाम्स में बहुत हल्के लेवल के आते हैं एज कंपेयर टू आरबीआई. सीटीसी 25 से 30 लाख रहेगा दोनों में. इसमें शायद आपका 30 लाख तक हो जाए या प्लस, बिकॉज ये ग्रेड बी लेवल है. पोस्टिंग्स पीएफआरडीए और एनपीएस की मेनली दिल्ली में रहती हैं, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेड ऑफिसेज इन दिल्ली. प्रमोशंस टाइम बाउंड रहेंगी, बट आई वुड स्टिल से ये ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती हैं, अगर इनमें 20 ऑफिसर हैं और 10 रिक्रूट कर रहे हैं, 20 से 30 50% का जंप है. तो छोटी है, बट प्रमोशंस होंगी, जल्दी होंगी एज कंपेयर टू आरबीआई और नबार्ड. नोटिफिकेशन का कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी आती है. लास्ट 21-22 में आई थी पीएफआरडीए की, 21 में आई थी एनपीएस की, उसके बाद कुछ सुनने को नहीं मिला है. नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस. So as I told you, do prepare for these exams only if you would have been preparing for SEBI. Otherwise, do not start your preparation for these exams. Just for these exams, I would say, only to be prepared with SEBI. ठीक है. Syllabus मैंने आपको बता ही दिया है. Almost similar to SEBI है. What I have discussed earlier, सिर्फ एक pension sector वाला component है. You might not be able to see here because that is coming behind the banner. ये पेंशन सेक्टर वाला कंपोनेंट है विच इज एडिशनल टू व्हाट यू वुड बी स्टडीइंग इन सेबी. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स दैट आई हैव लिस्टेड हियर आर सिमिलर टू सेबी. तो सेबी में जो आपने एडिशनल पढ़ना था वो आप सेबी में पढ़ लेंगे. उसके बाद इसमें आपको कुछ एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट दी पेंशन सेक्टर. एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी है पीएफआरडीए में, मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगेन व्हाट इट वाज देयर इन सेबी, एंड बैचलर्स डिग्री इन लॉ एंड इंजीनियरिंग, और उसके बाद वही. ठीक है. एसीए, एफसीए, जो भी आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल्स हैं, आईसीएसआई, ठीक है, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए, ये सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, दे आर एलिजिबल. एनपीएस में भी आप देखेंगे मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन बट बैचलर्स ओनली इन इंजीनियरिंग एंड लॉ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीए, सीएफए, सीडब्ल्यू एंड सीएस. तो सेबी, पीएफआरडी और एनपीएस में ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी है. मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन आर अलाउड, वेयर एज बैचलर्स ओनली इन इंजीनियरिंग एंड लॉ इज अलाउड. ठीक है. तो ये दोनों की एलिजिबिलिटी है. यू माइट बी एबल टू डिसाइड इसको पढ़कर कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है. इसमें भी लोगों को ये लगता है कि यार कमर्स बैकग्राउंड वाले क्लियर करेंगे या सीएस ही क्लियर करेंगे, इंजीनियर्स भी करते हैं, बट अगेन इसकी अलग से तैयारी मत करना, सेबी के साथ ही करना, अलग से पंगा मत ले लेना. लेस नंबर ऑफ सीट्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं, बट ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एज आई एम टेलिंग यू शुड बी ओनली प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर सेबी. तो ये लेस नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए मायने नहीं रखेंगे, बिकॉज आप सेम तैयारी से
एडिशनल सीट्स पे compete कर रहे हो. And the next and the last exam that I want to tell you is IFSCA grade A. अब क्या ये हर साल होता है? नहीं, ठीक है, लेकिन 22 में और 23 में इसमें वैकेंसीज आई हैं. एंड अगर आप यूनियन बजट में भी देखेंगे, गवर्नमेंट हैज शोन इंक्रीज्ड एम्फोसिस ऑन IFSCA. गवर्नमेंट वांट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू कम इन अहमदाबाद. तो ये हो सकता है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट बन जाए, दो कोई भी ऑफिशियल मैंडेट नहीं है, सीट्स इसमें कम ही आती हैं. सिलेबस ओवरलैप इफ आई कंपेयर इट विद आरबीआई वुड बी 60%, बट इफ आई कंपेयर इट विद सेबी, अगर आप सेबी के लिए तैयारी कर चुके हैं, सिलेबस ओवरलैप वुड ऑलमोस्ट बी 90%. तो ये ग्रेड ए लेवल पे होगा. सीटीसी वही आपका 25 से 30 लाख. यहाँ पे पोस्टिंग्स मेनली अहमदाबाद में रहेंगी. 99% ऑफ द वर्कफोर्स एज ऑफ नाउ इज इन अहमदाबाद. प्रमोशंस फास्ट रहेंगी बट टाइम बाउंड रहेंगी, ठीक है, लेकिन आरबीआई से फास्ट रहेंगी. और स्किल्स की बात करें तो इंश्योरेंस आपको नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बट अगर आप आईआरडीआई पढ़ चुके हैं तो इंश्योरेंस भी आपका हो जाएगा. पेंशन आपको आरबीआई के कंपैरिजन में नया पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप पीएफआरडीए पढ़ चुके हैं तो ये भी आपका हो जाएगा. आईएफएससीए एक्ट इज समथिंग विच इज यूनिक टू आईएफएससीए ओनली. ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. क्वांट रीजनिंग और करंट अफेयर्स का यहाँ पे ज्यादा रौला नहीं है, आसान आते हैं, यू कैन इजीली मैनेज, ठीक है. नोटिफिकेशन जैसा मैंने बताया 23 और 24 में आई है, फर्स्ट क्वार्टर में आई थी दोनों साल में. सीट्स कम है, अगले साल आएगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है, बट दिस इज again one of the exams. If you have been preparing for other exams like RBI, NABARD, ADAI, right, you would have almost done 60-70% of your preparation. अगर आप सेबी के लिए भी तैयारी कर चुके हैं तो इफ्सका की 100% प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आपकी हो चुकी है. और इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है, बैचलर्स इन लॉ, ठीक है, ठीक है, और इन एनी अदर डिसिप्लिन. तो इन्होंने लॉ तो लिखा है, साथ में इंजीनियरिंग नहीं, एनी अदर डिसिप्लिन लिखा है. तो अगर आप किसी भी और डिसिप्लिन में कर चुके हैं तो मतलब बैचलर्स इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप इसको हटा दें और सिर्फ यही पढ़ें बैचलर्स इन एनी डिसिप्लिन इज एलिजिबल फॉर इफ्सका. आप कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर इफ्सका. कोई परसेंटेज कंडीशन भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के 60% से कम होते हैं, आरबीआई नाबार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, सो दे वुड बिकम एलिजिबल फॉर इफ्सका, ठीक है. सिलेबस की बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं फेज 1 में, ये आरबीआई से सिमिलर है. पेपर 2 में करंट इवेंट्स ये सेम है. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये आरबीआई वाला आ जाएगा. कमर्स एंड अकाउंट्स ये सेबी वाला है, अगर आपने सेबी की तैयारी की है, नहीं तो दिस वुड बी एक्स्ट्रा टू आरबीआई. मैनेजमेंट एंड फाइनेंस वुड बी सिमिलर. Costing again would be similar to SEBI if you would have done SEBI preparation. Otherwise, this would be an extra component. Indian economy, this is something that you would study in RBI itself. And then schemes, again, this would be part of RBI preparation. So, sirf commerce and accounts and costing would be extra if you have not prepared for SEBI. Otherwise, everything is done here. Descriptive English, almost similar to RBI. Paper 2 of phase 2. इसमें कैपिटल मार्केट बैंकिंग इज पार्ट ऑफ आरबीआई प्रिपरेशन. इफ्सका एक्ट एंड रेगुलेशंस, दिस वुड बी हाईली इंपॉर्टेंट एंड न्यू कंपोनेंट दैट यू वुड बी डूइंग. उसके बाद इंश्योरेंस, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एडाई दिस वुड आल्सो बी डन, अदरवाइज इट वुड बी अ न्यू कंपोनेंट. पेंशन अगेन इट वुड बी अ न्यू कंपोनेंट अनलेस एंड अंटिल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर पीएफआरडीए. तो ओवरऑल आप अगर सारी रेगुलेटरी बॉडीज को देखेंगे, मेन चीज निकल के ये आ रही है कि इनमें बहुत सारा ओवरलैप है. अगर आपने आरबीआई, नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर लिया, सेबी के लिए प्रिपेयर कर लिया, देन अदर पेपर्स सच एज एडाई, पीएफआरडीए, एनपीएस, इफ्सका, दे डजंट रिक्वायर मच प्रिपरेशन. आपके जो मेन एग्जाम्स होने चाहिए वो आरबीआई, नाबार्ड, सेबी होने चाहिए. सेबी का पता नहीं है बट आरबीआई, नाबार्ड तो आपको करना ही है. साथ में एडाई इज सर्टन 100% टू कम नेक्स्ट ईयर एज पर देयर मैंडेट, तो वो भी तीसरा एग्जाम है जो आपको करना चाहिए. सो 3 एग्जाम्स आरबीआई, नाबार्ड, एडाई आपको अगले साल के लिए करने ही करने हैं. जो आपकी आरबीआई में 80 सीट्स हैं, अगर मैं उसमें नाबार्ड की भी 60, एडाई की भी 40 मिला दूं तो वो 180 हो जाती हैं. उसके बाद सेबी आएगा नहीं आएगा नहीं पता है, ठीक है, बट अगर आप सेबी की तैयारी पहले कर चुके हैं, देन इफ एनी अदर नोटिफिकेशन कम्स लाइक इफ्सका, पीएफआरडी, एनपीएस, यू माइट ऑल्सो गेट एडिशनल 15 to 20 सीट्स ऑफ दैट एग्जाम, मेकिंग इट टोटल ऑफ 200. सो आई होप आपको मेजर चीज समझ आ रही है कि कौन सा एग्जाम आपके लिए कितना ओवरलैप लेके आ रहा है, कितना रेगुलर है, कितना सिलेबस ओवरलैप है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल.
I hope you would be able to take a good decision for your future and decide which are the exams you want to give in the year 2025. Thank you. Have a nice day. Bye bye.